بری لعنت ہے. معاشرے میں بھی عزت نہیں رہتی اور باہر بھی دوستوں میں رشتہ داروں میں کوئی عزت نہیں رہتی. ٹھیک ہے, اور آپ سے یہی گزارش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ نشہ چھوڑ دیں. نشہ بہت بری لعنت ہے. اللہ پاک آپ کو زندگی سے تندرستی دے جی. تھینک یو. انسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ویلکم ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا ریاض احمد. آپ دیکھ رہی ہیں بول نقیب نیوز. آج ہم موجود ہیں چڑھتے سورج کی سرزمین یعنی نارووال. پاکستان کا اسٹینڈرڈ ٹائم جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ اس سرزمین یعنی نارووال سے. آئیے آج ہم یہاں پہ برائے ترک منشیات ادارے کا وزٹ کرواتے ہیں آپ کو. چارٹ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر آپ؟ جی الحمدللہ اللہ کے احسان ہیں. اچھا سر, آپ بتائیے گا آپ یہاں پہ مریضوں کو کیسے سروے کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ, جب ہمارے پاس پیشنٹ ہم داخل کرتے ہیں اسے تو اس کا مکمل جسمانی معائنہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم مریض کو داخل کرتے ہیں. سر داخل کرتے وقت سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اس کے جسم کو چیک کرتے ہیں, کہیں سے کٹا تو نہیں, کہیں زخم تو نہیں ہے جسم کے اوپر. اس کا مکمل جسم چیک کرنے کے بعد پھر اس کو نہلاتے ہیں کیونکہ وہ گندا بہت ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد اسے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنائے جاتے ہیں. پھر اس کا بلڈ لے کے ٹیسٹ کروانے کے لیے بھیج دی جاتی ہے. سر پیشنٹ کو میڈیسن کون تجویز کرتے ہیں؟ جی وہ ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ ڈاکٹر ارسلان صاحب, وہ مریض کو چیک کرتے ہیں, وہی میڈیسن تجویز کرتے ہیں. اور ساتھ میں جو ڈسپینسر ہے وہ ان کو میڈیسن جو ہے نا وہ دیتے ہیں. کیا آپ مریضوں کے ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں؟ جی وہ ضروری ہے. جو مریض بھی ہم داخل کرتے ہیں اس کے ٹیسٹ لازمی ہر پیشنٹ کے کروائے جاتے ہیں. ٹیسٹ کروانے کے بعد ہی ہم پیشنٹ کو داخل کرتے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ کون سا ڈرگس یوز ہو رہا ہے مریضوں میں؟ اس وقت جو ہے نا ہمارے پورے ملک میں جو ہے یہ آئس بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں. اور آئس کی وجہ سے جو حادثات ہو رہے ہیں وہ بھی اسی نشے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اور جتنی خودکشیاں ہوئی ہیں, جتنے ایک دوسرے کو مرڈر کرنا, یہ سارے اسی کے ہی افیکٹ ہیں. یہ بہت زیادہ خطرناک نشوں کے اندر اسے گنا جاتا ہے. باقی سب جو نشے ہیں اس سے کم ہیں, مگر یہ جو ہے یہ بہت زیادہ. سر آئس برین پہ اٹیک کرتا ہے؟ بالکل, یہ انسان کا دماغ بالکل معاف کر دیتا ہے. اسے نہ تو ماں کی پہچان, نہ باپ کی, نہ گھر والوں کی, کسی کی پہچان نہیں ہوتی. یہاں تک کہ آپ نے بھی کتنے واقعات سنے ہوں گے, یہاں پر بھی اپنے باپ کو قتل کر دیا, ماں کو قتل کر دیا, بیٹوں کو قتل کر دیا. یہ آئس کے افیکٹ ہیں. بلکہ ہمارے نارووال کے اندر بھی پچھلے دنوں ایک بچے نے اپنی گردن کاٹ لی صرف آئس کی ہی وجہ سے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. سر آپ کا یہ جو ٹریٹمنٹ ہے کتنے ماہ کا ہوتا ہے؟ 3 مہینے ہم رکھتے ہیں مریض کو. اگر وہ نہ ٹھیک ہوا تو زیادہ دیر بھی رکھنی پڑ جاتی ہے, رکھ لیتے ہیں زیادہ دیر بھی. سر کچھ لوگ ٹھیک ہو جانے کے بعد یہاں سے جانے کے بعد پھر سے نشہ سٹارٹ کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ماحول بہت زیادہ خراب ہے. ہمارے ملک میں خاص کر ہر دوسرے گھر میں, ہر تیسرے گھر میں نشے کی لعنت جو ہے نا پہنچ چکی ہے. حکومت نے جو سروے کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 1 ملین جو لوگ ہیں وہ نشے پہ لگے ہیں. مگر میں یہ سوچتا ہوں اس سے بھی بہت زیادہ حد تک لوگ نشے پہ لگ چکے ہیں. تو جب یہ یہاں سے باہر جاتے ہیں مریض, وہاں جا کر ان کے پرانے دوست ملتے ہیں, یاریاں ملتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, چیک کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو گھر والے بھی نہیں دھیان دیتے, تو اس لیے بچہ دوبارہ نشے پہ لگ جاتا ہے. سر آپ یہاں پہ ان پیشنٹس کی تربیت کیسے کرتے ہیں, پلیز بتائیے. ہم الحمدللہ ہم مریض کو جب داخل کرنے کے بعد 1 ہفتہ تقریباً اسے ریسٹ دیتے ہیں. میڈیسن کھا کے جب وہ نکلتا ہے اپنے اس کے افیکٹس کے بعد, اس کو ہم تہجد کے وقت اٹھاتے ہیں. صبح کے وقت تہجد کی نماز پڑھاتے ہیں, پھر فجر کی نماز پڑھتا ہے. اس کے بعد تفسیر القرآن پڑھایا جاتا ہے. جو قرآن نہیں پڑھے انہیں قرآن کی تربیت دی جاتی ہے. اس کے بعد ایکسرسائز کروائی جاتی ہے. یہ ساری جو ہے صبح تہجد سے لے کر عشاء تک کلاسز چلتی رہتی ہیں. سر اس کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹیز اس میں ایڈ کرتے ہیں آپ؟
जी बिल्कुल, हम उन्हें एक्सरसाइज करवाते हैं। रात के वक्त एलसीडी लगी है, वहाँ पर कोई ना कोई उन्हें इंटरटेनमेंट के लिए मूवी भी दिखाई जाती है। हिस्टोरिकल कोई मूवीज़ होती जी जी बिल्कुल, मूवीज़ दिखाई जाती है। फिर उलमा को बुलाया जाता है, बड़े बड़े उलमा यहाँ पर आते हैं, वो उन्हें दस देते हैं, स्पीच करते हैं। फिर साइकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर बैठती है, डॉक्टर शहाजा साहबा, वो इन्हें बाकायदा ट्रीट करती है। हर अलग अलग पेशेंट को तकरीबन उनके एक एक घंटा 2-2 घंटे उन्हें वो टाइम देती है। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सिर्फ आपके सेंटर की ख़ास बात क्या है कि ये दूसरे सेंटर से काफ़ी मुख्तलिफ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ नारोवाल में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे जो सेंटर जैसा सेंटर है वो नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा सेंटरों के अंदर मैंने विज़िट भी किए हैं, उनमें जो ख़ास हमारे में बात है कि हम मरीज़ को किसी किस्म का नशा नहीं देते, मतलब कि ना हम सिगरेट देते हैं ना नस्वार देते हैं, कोई नशा नहीं। और दूसरे जो सेंटर हैं उनके अंदर मेडिसिन के साथ साथ कोई 3 सिगरेट दे रहा होता है, कोई 2 सिगरेट दे रहा होता है, क्योंकि मैंने काफ़ी सेंटर में विज़िट किए हैं, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। हमारे पास जब पेशेंट दाखिल होता है हम पहले दिन ही से उसके सारे नशे छुड़वा देते हैं। तालीम और माँ बाप का एहसास, बहनों का एहसास, घर वालों का एहसास, ये सारी चीज़ें दूसरे सेंटरों में नहीं होती। वो सिर्फ मेडिसिन खिलाते हैं और वहाँ ज़्यादातर जो गुफ्तगू होती है वो नशे के मतलब ही होती है कि साथ नशा भी छुड़वाना है और उसे एक बेहतरीन शख्स बना के इंशाल्लाह हम यहाँ से निकालते हैं। वो जो नशे पे लगे हुए हैं इसे मामूली ना समझें। ये लोग जो नशा करके रोडों के ऊपर पड़े हैं और ये दरबारों पे पड़े हुए हैं, ये लोग कोई आम लोग नहीं हैं, ये हमारे भाई हैं, हमारे अंदर से ही हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी के अंदर इतली सुन रहे हैं, तावन ख़ास किया जाए कि हम ऐसे लोगों के साथ तावन कर सकें और लोगों का फ्री इलाज कर सकें। आपको नज़र पहले तो ऐसे होता था कि फीलिंग्स ऐसी आती थी कि नशा मैं बिल्कुल छोड़ो ही ना कि नशा। आप कौन सा नशा करते थे? मैं आइस भी पीता था, पाउडर के इंजेक्शन भी लगाता था, चर्स भी पीता था। अब इंशाल्लाह ताला शुक्र अल्लाह का अब कोई ऐसी फीलिंग आइस का इफेक्ट आपके ब्रेन पे होता है या बॉडी पे होता है? ज़्यादा इफेक्ट किस पे करते हैं? माइंड पे होता है, माइंड पे इफेक्ट होता है उसका जी। अच्छा, ज़्यादा माइंड पे होता है, तो उससे आपको क्या लगता है कि मैं क्या करूं? मतलब मैंने जो सुना है कि वो रिस्पेक्ट इंसान भूल जाता है, अपने बड़े छोटे की तमीज़ भूल जाता है। आप मुझे ज़रा बताएं। जी बिल्कुल, उसके साथ ये होता है कि इंसान अपने घर वालों के, दोस्तों, किसी की बात नहीं सुनता। अगर कोई ऐसा उसके सामने कर भी रहा है उसको वो बुरा लगता है, ठीक है। कोई अच्छा काम भी कर रहा है उसको वो भी बुरा लगता है। उसके साथ बहुत अजीब अजीब फीलिंग्स आती हैं। तो जब आप नशा करते थे आपकी वालदा आपको रोकती नहीं थी? रोकती थी, तब मैं स्मोकिंग करता था, सादा सिगरेट पीता था, तब वो रोकती, तब मैं रुका नहीं, ठीक है। जब आस्ता आस्ता गैदरिंग बढ़ती गई, आस्ता आस्ता बढ़ती गई, काम ख़राब होता गया, मैं ज़्यादा लग गया नशे पे। तो जब आप यहाँ पे आए, आपका ट्रीटमेंट हुआ है, तो आपको कितने % लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हो? 100% शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हूँ मैं। और अगर ऐसे दोस्तों से फिर आपका उठना बैठना होता है, दोबारा अगर इस तरह का कोई काम करते हैं, तो आपको लगता है कि आप दोबारा उस चीज़ में जाना चाहते हैं जो आपने फेस की है पहले? नहीं बिल्कुल नहीं। अगर हम जाकर गलत गैदरिंग में बैठेंगे तो गलत सोबत मिलेगी। इंशाल्लाह ताला गलत गैदरिंग में नहीं बैठना, जाके अच्छे काम करने हैं, ठीक है। जो गलत काम करते हैं उनको भी रोकना है इंशाल्लाह। अच्छा, एक वालदा के लिए कोई पैगाम कहना चाहेंगे? अगर आपकी ये वीडियो आपकी वालदा देख रही होंगी तो उसके लिए क्या पैगाम? उनके लिए यही पैगाम है, उनको मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, ठीक है। और उनको यही कहता हूँ अल्लाह पाक उनकी लंबी उम्र करे और अल्लाह ताला सबकी माओ की लंबी उम्र करे, यही दुआ है मेरी। और आप अपनी वालदा से कोई प्रॉमिस करना चाहते हैं कि आइंदा आप इस तरह की नशे की कोई लत नहीं लगाएंगे? इंशाल्लाह ताला मैं अपनी वालदा से गॉड प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी ज़िंदगी में इंशाल्लाह ताला कभी नशा नहीं करूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अवैस रसूल। जी अवैस, आप मुझे बताइए कि आपको नशे की आदत कहाँ से लगी? ये दोस्तों में गलत गैदरिंग में बैठ के नशे की आदत पड़ी है मुझे, उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया मैं। ठीक है, तो अब आपको कितना अर्सा हुआ है यहाँ पे? मुझे तकरीबन 5 मंथ हो गए हैं इधर। 5 मंथ। ठीक है, तो आपको घर वालों की याद आती है? बहुत आती है बिल्कुल। ठीक है, तो अब आप वापस जाने वाले हैं, तो आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लग रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही है, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला अब जाए कोई नशा नहीं करना, अच्छी स्ट्रगल करूँगा, काम करूँगा, अपना शादी वगैरह करूँगा, सिस्टर की छोटी। अच्छा, इससे जाने के बाद सबसे पहले आपने शादी करनी है? पहले कोई काम करना है? पहले जाके फिर इधर से सऊदीया जाना, सीधा जाके इंशाल्लाह उम्रा करूँगा, फिर काम करूँगा, फिर आगे। सबसे ज़्यादा याद आपको किसकी आती है? वालदा की आती है, वालिद की आती है जी। जो आपको मिलने आते हैं वो लोग? नहीं फ़िलहाल तो नहीं, वालिद साहब फोत हुए हैं, वालदा जो है वो सऊदीया होती हैं जी। तो इंशाल्लाह ताला मैंने भी सऊदीया चले जाना, इधर से डायरेक्ट ही सऊदीया जाना जी। ठीक है, तो आप नशा और अपने दोस्तों को कोई पैगाम देना चाहेंगे आखिर में? कैमरे को देके पैगाम दीजिए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, नशा छोड़ दो, नशा बहुत बुरी लानत है। माशरे में भी इज़्ज़त नहीं रहती और बाहर भी दोस्तों में, रिश्तेदारों में कोई इज़्ज़त नहीं रहती, ठीक है। और आपसे यही गुजारिश है कि इंशाल्लाह ताला आप ये नशा छोड़ दें। नशा बहुत बुरी लानत है। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे जी। थैंक यू, थैंक यू।
साथ रिहेबिलिटेशन सेंटर का कॉन्टैक्ट नंबर हम स्क्रीन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे. काइंडली जो लोग हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं उनके लिए खुसूसी डिस्काउंट ऑफ़र भी अवेलेबल है. अपनी होस्ट इकरा रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.